Good morning, everyone. Today we are going to solve a CAT 2025 Slot 3 DILR papers. Before solving, please remember one thing. CAT DILR is not about calculation. It is about understanding the situation. First, we will read the story slowly. Then, we will understand what is happening. After that, we will connect the information with the graph. Please do not jump to the question. If you understand the graph and rules, the questions become easy. So clarity is more important than speed. So let us now start step by step like a cat topper. This is first set. Anvid, Chandranath, Kaushik and Suranjan participated in a puzzle solving competition. The competitions comprised 10 puzzles that had to be solved in the same sequence. That is, a competitor got access to a puzzle as soon as they solved the previous puzzle. Some of the puzzles were visual puzzles and the others were number-based puzzles. The winning of the competitions was the one who solved all the puzzle in the least time. The following chart describes their progress in the competition. The chart on the left shows the number of puzzles solved by each competitor and the given time in minute after the start of the competition. The chart on the right shows the number of visual puzzles solved by each competitor at a given time in minute after the start of the competition. So what is happening over here? 4 people, Anirvid, Chandranath, Kaushik and Suranjan are solving puzzles. There are 10 puzzles and they must be solved one after the other. A person can start next puzzle only after finishing the previous one. X-axis shows the time in minute and the y-axis shows number of puzzles solved. Each colored step line is one participant. When the line goes up means a puzzle is solved. When a line is flat, it means a person is working on a puzzle. Left graph shows all puzzles solved by each person over the time, and the right puzzles shows the number of visual puzzles solved by each person over the time. So here there are two types of puzzles, numbers puzzles and visuals puzzles. Let's begin. Here. तो ये वाला राइट वाला ग्राफ आपका विजुअल पजल्स है और लेफ्ट वाले में नंबर्स पजल्स एंड विजुअल पजल्स दोनों इंक्लूड हैं. यहां से पेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एक डिफरेंट टाइप का ग्रीन पजल. देखो इनको समझना कैसे है. जैसे टोटल 10 पजल्स हैं, 10 पजल्स में से कुछ नंबर पजल्स हैं और कुछ विजुअल पजल्स हैं. अगर नंबर की बात करें, जैसे मैं अगर कौशिक की बात करूं तो कौशिक ने फर्स्ट पजल सॉल्व किया है यहां से यहां तक, यानी कि ये टाइमिंग दिया ना, ये पूरी टाइमिंग दिया है 10 मिनट और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. मतलब हर एक गैप के बीच में 2-2 मिनट का डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा, अगर मुझे किसी भी पर्सन का देखना है कि पजल कितने मिनट में सॉल्व हुआ तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं. जैसे अगर मुझे ग्रीन वाला चेक करना है तो कौशिक ने यहां से स्टार्ट किया और यहां ये देखो फ्लैट लाइन है. फ्लैट लाइन रिप्रेजेंट अ पर्सन इज वर्किंग ऑन द पजल. ठीक है.
तो ये हुआ 2 मिनट। 2 मिनट में इसने फर्स्ट पजल पे काम किया, और ये जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 मिनट में पहला पजल आपका कंप्लीट हो गया। फिर फ्लैट लाइन है, मतलब अब दूसरे पजल पे काम हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ पर 4th मिनट में कंप्लीट हो गया। फिर ये फ्लैट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पजल पे काम हो रहा है, और ये थर्ड कंप्लीटेड है ना। फिर 4th पजल पे काम हो रहा है एंड 4th हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक ना। तो ये मिलाकर हमने देखा, अगर फ्लैट लाइन है मतलब उस पजल पे काम हो रहा है, इफ लाइन गोज अप इट्स मीन द पजल हैज बीन डन। अब हम आते हैं, ये तो हो गया कंबाइन दोनों का। अगर हम बात करें यहाँ पे विजुअल का, तो विजुअल पजल्स हैं टोटल 1 2 3 4 विजुअल पजल्स हैं। अगर मैं कौशिक की ही बात करूं, आप ऐसे किसी का भी पर्सन का ले सकते हो, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आप कोई सा भी कलर पिक कर लो, हर एक कलर डिफरेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम पहले पजल की बात करें, तो पहले पजल में ऑल में कौशिक ने जो अपना पहला पजल कंप्लीट करा है वो कंप्लीट किया है 2 मिनट में, और विजुअल में उसने अपना पहला कंप्लीट किया है 2 मिनट में। इसका मतलब जो पहला पजल था वो विजुअल पजल था, पहला पजल विजुअल पजल था, क्योंकि दोनों में सेम टाइमिंग है। अच्छा, कौशिक ने या फिर किसी भी पर्सन ने जो अपना दूसरा विजुअल पजल कंप्लीट किया है, अगर मैं सिर्फ कौशिक की बात करूं, तो कौशिक ने देखो ये 12 मिनट में अपना सेकेंड विजुअल पजल कंप्लीट किया है। इसका मतलब अगर मैं ऑल की बात करूं, तो ऑल में भी सेकेंड पजल कंप्लीट हुआ होगा 12 मिनट में। तो देखो कौशिक की अगर मैं बात करूं, देखो 12 मिनट में ये वाला पजल सॉल्व किया है कौशिक ने, मतलब ये जो पजल था 5th वाला, ये आपका है विजुअल पजल, ठीक ना, ये हो गया विजुअल पजल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नहीं, ये तो 4th पे था ना, एक सेकंड, 4th, ये है आपका, ये है 12 पर है, ये ग्रीन वाला 12 पर है, तो ये 12 यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर, तो 12 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 4th नंबर है विजुअल पजल। तो 4th नंबर हो गया विजुअल पजल, तो यहाँ पे लिख लिया 4th हो गया विजुअल। ठीक है, अच्छा अगर मैं थर्ड विजुअल की बात करूं, तो थर्ड विजुअल कंप्लीट हुआ था, अगर मैं कौशिक की बात करूं, तो देखो यहाँ पे 22 24 एंड 25, तो 25 देखते हैं कहां पर है, 25 ये देखो, ये यहाँ पर कंप्लीट है ये पजल, तो 8th नंबर का पजल विजुअल था। और अगर इसकी बात नेक्स्ट की बात करें, तो ये है आपका 29 पे हुआ है ये सॉल्व, तो 29 में 4th विजुअल पजल कंप्लीट हुआ है, तो 29 टाइमिंग ये होगा, यहाँ पे 4th विजुअल पजल, ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर है, यानी कि 9th वाला विजुअल पजल था। तो सेकेंड वाला नंबर हो गया, थर्ड वाला नंबर पजल, 5th नंबर पजल, 6th नंबर पजल, 7th नंबर पजल एंड 10th नंबर पजल। आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, हु हैड सॉल्व द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पजल बाय द 20th मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन। तो सिंपल है, आप देखो 20 मिनट तक कौन सबसे ज्यादा पजल सॉल्व किया था, ये 20 मिनट वाला लाइन है, ये 20 मिनट वाला लाइन है। यहाँ पर हम देखेंगे इस टाइम तक कौन सबसे ज्यादा ग्राफ सबसे ज्यादा पजल सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो 20 मिनट तक ये कौशिक ग्रीन है, ग्रीन यानी कि ये 7th लाइन पे, मतलब कौशिक ने 20 मिनट तक 7th नंबर पजल सॉल्व करा था, मतलब 6 कंप्लीट कर दिया, 7th पे 7th भी कंप्लीट कर लिया 20 पे। अच्छा अगर मैं येलो वाला पार्ट करें, तो देखो ये 5th कर रहा था। अगर मैं बात करूं इसकी सुरंजन की, तो ये कर रहा था 4th पजल, तो सबसे ज्यादा कौन किया, कौशिक किया। ठीक ना, बहुत आसान था ये, तो हर एक बच्चे को कर लेना चाहिए था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मिनट डिड सुरंजन टेक्स टू सॉल्व द थर्ड विजुअल पजल। तो थर्ड विजुअल पजल कौन सा पजल था, थर्ड विजुअल पजल था पजल नंबर 8। तो सुरंजन यानी कि ब्लू कलर वाला जो लाइन है, वो 8 पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, 8 पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, यहाँ पर 7th कंप्लीट हो गया था, है ना, यहाँ पर हुआ था 7,
सेकंड सुरंजन की बात हो रही है, विजुअल पजल को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया था। तो देखते हैं, आप विजुअल पजल यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं। ये हुआ, रफ कर दिया हमने। तो देखो 8 नंबर कौन सा था, ये थर्ड विजुअल पजल, थर्ड विजुअल पजल था 8 नंबर का पजल। 8 नंबर पजल सॉल्व करने में सुरंजन को कितना टाइम लिया, तो सुरंजन का जो 9th पजल था यहाँ पे सॉल्व हुआ है, 8th नंबर पजल यहाँ पे सॉल्व हुआ है, 7th यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो 7 से 8 आने में उसको लगे 2 मिनट। तो ये आंसर आया 2 मिनट। ठीक है। एट व्हाट नंबर इन द सीक्वेंस वाज द 4th नंबर पजल, 4th नंबर पजल कौन सा था, सेकंड वाला फर्स्ट था, थर्ड वाला सेकंड था, तो 6th नंबर का था। तो ये आंसर आया 6। नेक्स्ट, which of the following is the closest to the average time taken by Anirvidh to solve the number based puzzle in the competition। तो अनिर्विद ने टोटल नंबर्स पजल्स को सॉल्व करने में कितना एवरेज टाइम लिया है। तो देखते हैं, अनिर्विद की बात हो रही है, यानी कि ये रेड वाले पार्ट्स की बात हो रही है। तो रेड वाले पार्ट्स में पहला नंबर, सेकेंड नंबर पजल है, थर्ड नंबर पजल है, 5th नंबर पजल है, 6th नंबर पजल है, 7th नंबर पजल है, 10th नंबर पजल है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड नंबर पजल यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, तो ये टाइमिंग हो गया 2 2 4 1 5। थर्ड नंबर पजल स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, थर्ड नंबर सेकेंड यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया 2 मिनट। फिफ्थ नंबर पजल यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक गया है, तो ये 2 2 4 1 5। और अगर हम आए 6th पर, तो 6th वाला यानी कि 5th यहाँ कंप्लीट है यहाँ तक, ये आया 1 2 3। और 7th नंबर पजल यहाँ से स्टार्ट हुआ 6 और यहाँ पे 7 कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया आपका 2 2 4 1 5। और 10th नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया 1 2 3 1 4। ये टोटल हो गया 5 2 7 7 3 10 15 5 20 24। तो 24 और टोटल 6 नंबर पजल है, डिवाइड बाय 6, ये आ गया 4 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं सेकंड पे। यहाँ पे बोला है 7 चिल्ड्रेन, हम सबका अल्फा स्टार्टिंग का लेटर अलग है, तो ए बी सी मान लेते हैं, डी ई एफ and G are sitting in a circle facing inside, not necessarily in the same order, and playing a game of passing the bucks. The game is played over the 10 rounds. In each round, the child holding the bucks must pass it directly to a child sitting in one of the following positions। ये आपके फोर्थ पासिंग टाइप है। The game start with the Bina passing the bucks and end with the Chirag receiving the bucks. The table below provides some information about the pass type and the child receiving the bucks. Some information is missing and labeled। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे बोला है there are 7 children sitting in a circle. They are playing a game called passing the bucks. Only one child holds the bucks at a time. The game has 10 rounds and only these 4 moves are allowed: immediate left, immediate right, second left and second right. Some informations are given and some are missing। तो देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि किस पर्सन के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4 टाइप के पासिंग टाइप है। पहला पासिंग टाइप है इमीडिएट लेफ्ट, देख लेते हैं कौन कौन सा था। इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट और सेकेंड लेफ्ट एंड सेकेंड राइट। ये 4 टाइप के पासिंग है, पासिंग टाइप है। 7 पर्सन है, 7 पर्सन एक सर्कल में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये हो गया, कहीं पर भी बना लेते हैं। तो 3 3 6 1 7।
यहाँ पे हम नंबरिंग चलो कर लेते हैं 1 2 3, वैसे करने की जरूरत नहीं है, 4 5 6 7, ये नंबरिंग हो गई। हमें कुछ पास टाइप दिया है, कुछ यहाँ पर मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में जो बक्स पास किया है वो है बी, बी मतलब बीना, यहाँ पे जो नाम लिखे हैं यहाँ पर आरव है, बीना, चिराग, दिया, ईशान, फरहान एंड गौरव, इनका हमने स्टार्टिंग का अल्फाबेट ले लिया। तो बीना के पास ने पहला मूव किया है, ठीक है, और जो लास्ट रिसीव हुआ है बक्स वो चिराग को मिला है। तो कैसे करेंगे, मैंने बीना को मान लिया यहाँ पे, चलो बीना यहाँ पर थी, ठीक ना। अगर बीना यहाँ पर थी स्टार्टिंग में तो होगा क्या, पहले बीना इमीडिएट लेफ्ट पास करेगी, तो इमीडिएट लेफ्ट यानी कि 7 नंबर वाले को सीट को मिलेगा, और यहाँ पे था ए। उसके बाद ये सेकंड राइट पास करेगी, तो सेकंड राइट पे ये सेकंड पोजीशन वाला होगा। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है हमें नहीं पता, मैंने इसको मान लिया एक्स है, कोई पर्सन एक्स है यहाँ पे, उस पर्सन को एक्स को यहाँ पर मिलेगा, सेकंड वाले को, ठीक है। इसके बाद ये एक्स पर्सन इसको फिर से इमीडिएट राइट वाले को पास करेगा, और वहां पे बैठा है दिया, तो यहाँ पे बैठी है दिया, उसको मिल जाएगा। फिर दिया अब कौन सा पास टाइप लिया है ये हमें नहीं पता, लेकिन यही 4 हो सकते हैं। तो अगर दिया ने पहला कोई भी इनमें से 4 में से कोई एक सेलेक्ट किया होगा पास टाइप, उसके बाद जिस पर्सन को वो बक्स मिलेंगे अब वो कोई सा दूसरा पास टाइप लेके आरव को देगा। तो हम देखते हैं अभी जो बक्स है वो दिया के पास है, तो दिया कौन सा इसमें से पास टाइप सेलेक्ट करेगी। अगर इमीडिएट लेफ्ट करेगी तो उसको फर्दर इमीडिएट सेकंड लेफ्ट लेना पड़ेगा, तभी वो आरओ के पास पहुंचेगा। मतलब यहाँ पे अगर इमीडिएट लेफ्ट लेती है तो सेकंड टाइम में मिलेगा सेकंड लेफ्ट, तभी आरओ को मिलेगा, और इमीडिएट लेफ्ट लेने पे उसको एक्स को मिल जाएगा बक, ठीक है। चल अच्छा, या फिर क्या कर सकती है दिया, दिया या फिर इमीडिएट राइट वाले को देती और सेकंड राइट लेती तो नहीं मिलता है ना, नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कर सकता है, इमीडिएट लेफ्ट से बन गया, इमीडिएट राइट से नहीं बन रहा। अच्छा, सेकंड लेफ्ट अगर लेती तो सेकंड लेफ्ट देन इमीडिएट लेफ्ट, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड लेफ्ट हो और फिर इमीडिएट लेफ्ट। लेकिन इस केस में मिलता जो बक्स सेकंड लेफ्ट के केस में बी को मिलता, मतलब यहाँ पे बी भी आ सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट में मिलता ए को, ठीक ना। अच्छा, पहले वाले में एक्स को मिलता पास होता, और अगर हम दूसरा पॉसिबिलिटी लेते तो बी को मिलता। अच्छा, ये भी कंप्लीट हो गया। क्या सेकंड राइट लेके पहुंच सकते हैं, तो सेकंड राइट अगर दिया लेती तो फिफ्थ वाले को मिलता बॉक्स, और फिर सेकंड राइट लेके आ रहा। तो सेकंड राइट में फिफ्थ पोजीशन पे कौन है नहीं पता, मैं वाई ले लेता हूँ, तो कोई वाई पर्सन होता उसको मिल जाता, ठीक ना। तो फाइनली अब फिफ्थ राउंड के बाद जो बक्स हैं वो पाए हैं ए। अब ए क्या करेगा, सेकंड लेफ्ट लेगा, तो सेकंड लेफ्ट लेगा तो पास हो जाएगा वाई को। फिर से इमीडिएट लेफ्ट लेगा ये, तो इमीडिएट लेफ्ट लेगा तो ये मिल जाएगा फोर्थ नंबर को, और फोर्थ नंबर पे बैठा है गौरव, तो यहाँ पे आ गया गौरव। फिर ये गौरव के पास अभी बक्स है, वो इमीडिएट लेफ्ट लेगा तो मिल जाएगा दिया को, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिया ही आएगी। अब दिया को ऐसे पास कराना है, ऐसा कोई पास टाइप लेना है कि फरहान को मिल जाए और फिर सेकंड के बाद चिराग को मिल जाए। तो क्या कर सकती है देखते हैं दिया। तो अगर दिया इमीडिएट लेफ्ट लेगी, इमीडिएट लेफ्ट लेने के बाद मान लिया एक्स फरहान हो गया। अब इमीडिएट लेफ्ट के बाद या तो इमीडिएट लेफ्ट लेती तो बीना पे आ जाती, नहीं आएगा। इमीडिएट राइट लेगी तो खुद उसके पास आ जाता, नहीं होगा। सेकंड लेफ्ट होता तो आरओ के पास आता, जो कि नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर सेकंड राइट लेते तो गौरव के पास आता, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब दिया ने एक्स वाला स्टार्टिंग में 9th स्टेप में इमीडिएट लेफ्ट पास टाइप नहीं लिया होगा, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड में, क्या इसने इमीडिएट राइट लिया होगा, तो इमीडिएट राइट लेके और सेकंड राइट नहीं पहुंचेगा, तो ये भी नहीं लिया होगा। अच्छा, और कोई देखते हैं, इमीडिएट राइट नहीं हो सकता। सेकंड लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट अगर लेते 1 2 तो बीना को मिलता, और फिर सेकंड लेफ्ट लेके चिराग पे मिल जाता है ना, यहाँ पर चिराग हो सकता था, ठीक है। अच्छा, ये इमीडिएट राइट नहीं हो सकता क्या, इमीडिएट राइट यहाँ पर आता, फिर यहाँ पे सेकंड राइट, इमीडिएट राइट तो नहीं हो सकता क्योंकि दिया को मिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, बिग बक्स तो दिया के पास है, ठीक है।
अभी हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा होगा। हमें ये तो पता है इमीडिएट लेफ्ट नहीं हो सकता, इमीडिएट राइट चेक करते हैं। इमीडिएट राइट यहाँ पे आ सकता है क्या, सोचो। इमीडिएट राइट करेगा दिया से तो गौरव आना चाहिए, नहीं हो सकता ये भी। ठीक है चलो। अच्छा सेकंड लेफ्ट लेते हैं तो 1 2 बीना को मिलना चाहिए था, नहीं हो सकता। सेकंड राइट लेंगे 1 2 एंड देन 1 2 ए को मिल रहा है, नहीं आ रहा है। तो इमीडिएट लेफ्ट एंड सेकंड राइट, तो ये हो जाएगा दिया कौन से टाइप लेगी, यहाँ पे कौन से टाइप का मूवमेंट करेगी। तो ये देख लेते हैं। पहला इमीडिएट लेफ्ट में तो नहीं आ रहा है ना। अगर दिया सेकंड राइट लेगी तो 1 2 यहाँ पे फरहान आ जाएगा और फिर उसको लेना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सेकंड राइट, सेकंड राइट अगर लेगी दिया तो पहुंच गया फरहान पे और हमें जाना है चिराग पे। तो चिराग पे जाने पे चिराग से यहीं पर हो सकता है क्योंकि सेकंड लेफ्ट लेगा नहीं पहुंचेगा, सेकंड राइट लेने पे नहीं पहुंचेगा। इमीडिएट राइट लेने पर, इमीडिएट राइट लेने पे आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो ये इमीडिएट राइट हो सकता है। ठीक है ये हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है ना। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। हु इज द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बीना, बीना के इमीडिएट राइट में कौन आएगा। तो बीना कौन है यहाँ पर, देखो जब दिव्या से हमने सेकंड राइट लिया तो हमें ये फिफ्थ नंबर पे जो वाई है, यानी कि वाई मतलब यहाँ पे फरहान हो गया, वाई मतलब फरहान हो गया। और सिक्स नंबर की पोजीशन पे यहाँ पे हो गया फरहान, सिक्स नंबर की पोजीशन में बैठेगा चिराग और यहाँ पे हो जाएगा ई। तो बोला है बीना के इमीडिएट राइट में कौन होगा, तो बीना के इमीडिएट राइट में ई है। दूसरा बोला है थर्ड लेफ्ट ई से थर्ड लेफ्ट आ गया चिराग, ये भी सही है। फिर बोला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टाइप कैन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस बी यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक ना। चलो कौन सा अकरेंस यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चार टाइप के थे, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, सेकंड लेफ्ट एंड सेकंड राइट। तो इमीडिएट लेफ्ट कितनी बार आया है, अगर हम यहाँ पे काउंट करें, इमीडिएट लेफ्ट आया है 1 टाइम्स यहाँ पर, और अभी जो कंफर्म है उसको देख रहे हैं। इमीडिएट लेफ्ट 2 टाइम्स यहाँ पे 3 टाइम्स। अगर ये वाला केस लेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। अब इमीडिएट लेफ्ट इस केस में एक बार और आएगा, इस केस में एक बार और आएगा, लेकिन इस वाले में नहीं आएगा। मतलब आंसर आएगा या तो 3 या फिर 4, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं आएगा। इमीडिएट राइट की अगर बात करें तो इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में आ जाएगा आपका कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स इमीडिएट राइट, बस 1 टाइम्स यहाँ पर है, ये कंफर्म है। 2 टाइम्स यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी लोगे तो 2 ही रहेगा, ये लोगे तो 2 ही रहेगा, ये भी लोगे 2 ही रहेगा, तो ये क्लियर है, यही आंसर आएगा। ठीक ना, इमीडिएट राइट। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स दे रिसीव द बग। तो कौन से पर्सन का हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उन्होंने कितने टाइम बग्स को रिसीव किया है। तो बग को कितने टाइम रिसीव किया है, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास गौरव, बीना, फरहान और ईशान। तो जी को देखते हैं कितनी बार, क्या हम कंफर्म बता सकते हैं कितनी बार इसने बग्स को रिसीव किया है। तो यहाँ पे x मतलब है, x मतलब ईशान, यहाँ पे ईशान लिख दिया, x मतलब ईशान, और y मतलब है यहाँ पे फरहान। ठीक है, तो 1 2 3 में से यहाँ पे तीनों आने की पॉसिबिलिटी है। y मतलब यहाँ पे है फरहान। ठीक है, चल तो ये हो गया। तो हम देखते हैं कितने लोगों का हम बता सकते हैं एग्जैक्टली उन्होंने कितनी बार बग्स को रिसीव किया है। तो पहला टाइप देखते हैं। पहला क्या हम बता सकते हैं गौरव का। तो गौरव ने अभी तक किसने पाया, इसमें नहीं पाया, इसमें नहीं पाया, इसमें नहीं पाया, इसमें नहीं पाया, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आपको 7th राउंड में गौरव को मिला है, तो गौरव 1 टाइम्स पाया है, ये हम बोल सकते हैं। गौरव ने अभी तक सिर्फ 1 टाइम्स ही पाया है, ये हो सकता है। अच्छा अगर बीना का देखें
तो बीना यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो 1 या फिर 0, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। फरहान की बात करें तो फरहान यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पाया है, यहाँ पे तो 2 या 3 आएगा, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। ईशान का देखें तो ईशान यहाँ कंफर्म है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब ये नहीं आएगा। या फिर हम सीधे यहीं पर देख लेते हैं, इन सब की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये नहीं होगा, आंसर यही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बोला है फोर कंट्रीज हैं, अरेबिया, ब्रेलोशिया, साइरेनिया, जेराथानिया are 4 countries with their currencies being orels, ब्रिंस, क्राउन्स एंड जेंटार्स respectively। तो हम बोल सकते हैं ए का हो गया, ए हो गया इसका करेंसी, बी का बी मान लेते हैं, ब्रेलोशिया का बी मान लेते हैं, साइरेनिया का सी मान लेते हैं करेंसी, और इसका जेड मान लेते हैं, ठीक है। The currency have different exchange value. Crowns currency exchange rate with the Gentars 0.5. It means 1 crowns is worth 0.5 Gentars, यानी कि 1 C is equal to 0.5 Z, यानी कि Z की वैल्यू आ सकती है 2 C। अगर हमें करेंसी एक्सचेंज करना है तो Z यूनिट 2 C यूनिट के बराबर है। 3 ट्रेवलर्स हैं, जानो, कीरा एंड लियान, सेट आउट फ्रॉम द जेरथानिया विजिट एग्जैक्टली 2 ऑफ द कंट्रीज। और ये लोग 3 लोग ने जेरथानिया से विजिट करना स्टार्ट किया है, यहाँ से इन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया है एग्जैक्टली 2 ऑफ द कंट्रीज, ईच कंट्रीज, और ये लोग सिर्फ 2 कंट्रीज विजिट करेंगे। ईच कंट्री इज विजिटेड बाय एग्जैक्टली 2 ट्रेवलर्स, ईच ट्रेवलर हैज अ यूनिक फ्लाइट कॉस्ट, और हर एक ट्रेवलर का डिफरेंट फ्लाइट कॉस्ट होगी, सेम नहीं हो सकती, which represent the total cost of airfare in the traveling to both the countries and the back to the जेरथानिया। तो कोई भी पर्सन जेरथानिया से ही ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, 2 डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा, वहां आने जाने का जो फेयर कॉस्ट है उन दोनों उनका सब टोटल कॉस्ट ऑफ एयर फेयर हो गया। द फ्लाइट कॉस्ट ऑफ द जानो वाज द 4000 जेड, तो ये जे का जो फ्लाइट कॉस्ट है, फ्लाइट कॉस्ट ये हो गया 4000 जेड, एंड द while the that of the other 2 travelers were 5000 and 6000। तो बाकी जो 2 है के एंड एल, इसकी जो फेयर कॉस्ट है ये हो सकती है 5000 इसकी, तो 6000 इसकी, जेड में है इसका है, या फिर 5000 इसका और जेड 6000 इसका फेयर कॉस्ट हो सकता है। Again, not necessary in the same when the visiting a country, a traveler spend either the 1000, 2000 and 3000 in countries local currency। तो जो भी ट्रेवलर्स हैं वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो या तो 1000 में करेंगे, जिस कंट्रीज में विजिट करेंगे उसके लोकल में करेंगे, या तो 2000 में या फिर 3000 में। आगे, each traveler had the different spend in the countries local currencies in the 2 countries he has visited। और हर एक पर्सन की डिफरेंट, कोई भी पर्सन, जैसे कोई पर्सन ए है वो 2 कंट्रीज में गया बी और सी में, तो बी और सी में जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा वो अमाउंट डिफरेंट होनी चाहिए। आगे, और इसने कहा है कि पूरे इन 6 लोगों ने, यानी कि 3322 में विजिट करेंगे 3 पर्सन, उन्होंने जो 6 कंट्रीज में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उनमें से जो 1000 अमाउंट है वो 2 टाइम्स आया है, 1000 2 टाइम्स आएगा और 3000 1 टाइम्स आएंगे। बाकी यानी कि जो 3 वैल्यू बचे वो 2000 होंगे, क्योंकि जो अमाउंट स्पेंड करना है वो 1000 2000 एंड 3000 में करनी है। फिर हमें टोटल ट्रेवल कॉस्ट दिया है, फॉर अ ट्रेवलर इज द सम ऑफ द फ्लाइट कॉस्ट एंड द मनी स्पेंड इन द कंट्री विजिटेड। तो ये जो टोटल कॉस्ट दिया है फ्लाइट कॉस्ट प्लस जिस कंट्रीज में उसके लोकल करेंसी में जितने अमाउंट स्पेंड करेगा उनका सम होगा। द सिटीजन ऑफ द 4 कंट्रीज विद द नॉलेज ऑफ दिस ट्रेवलर्स मेड अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस। तो जिस कंट्री में विजिट किए ये लोग, उनके जो लोकल सिटीजन थे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, ये आपको 3 पॉइंट दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी जो हमने फर्स्ट सेकंड करा वो आसान क्वेश्चन था, वो सारे बच्चों को कर लेना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा हो सकता था आपको टाइम लगता, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो आप पहले ये समझो इसमें हो क्या रहा है। 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज में और 3 ट्रेवलर्स हैं, 3 ट्रेवलर्स
जनथानिया से विजिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग 2-2 कंट्रीज में जाएंगे, उनके लोकल करेंसीज में अमाउंट स्पेंड करेंगे, अमाउंट की जो वैल्यू होगी 1000, 2000, 3000 होगी। कोई भी पर्सन जिस 2 कंट्रीज में विजिट कर रहा है उसका अमाउंट सेम नहीं हो सकता है, ये आपको दे रखा था। तो हमने सिंपल यहाँ से एक टेबल बना लिया, ट्रेवलर के नाम लिख दिए, कंट्रीज जिस कंट्रीज में विजिट करेगा, मनी स्पेंड, फ्लाइट कॉस्ट एंड ट्रेवल कॉस्ट। बस ये ध्यान रखिएगा ट्रेवल कॉस्ट की वैल्यू फ्लाइट कॉस्ट प्लस मनी स्पेंड के सम के बराबर है। अब आपको ये 3 वैल्यू दे रखी थी कि इन्होंने कितने कितने इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसने करा था फ्लाइट कॉस्ट में 4000 जेड, कि इसका के और एल का कंफर्म नहीं था, तो यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी बना दी। ठीक है। अब हमें पता है जो अमाउंट इन्वेस्ट होनी है वो 1000 आएगा 2 टाइम्स, 3000 आएगा 1 टाइम्स एंड 2000 आएगा 3 टाइम्स। तो ये हमने अमाउंट लिख लिया। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दे भी रखा था, कौन सा, विजिटिंग ट्रेवल स्पेंड कंट्री लोकल, ईच ट्रेवलर हैज द डिफरेंट 2 कंट्रीज ऑल द टू स्पेंड, ये हो गया। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Auravia citizen said जानू एंड क्यारा विजिटेड आवर कंट्री। तो यानी कि ये भी ऑरेविया में विजिट किया है और क्यारा भी ऑरेविया में विजिट किया है, ठीक ना। एंड देयर ट्रेवल कॉस्ट वर 3500 एंड 8000 रेस्पेक्टिवली। तो 35,000 यानी कि ऑरेविया वाला बोल रहा है, तो मतलब ये जो अमाउंट होगा उसके लोकल करेंसीज में होंगे और 8000 भी इसके लोकल करेंसीज में होंगे। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। आगे, ब्रेलोसिया सिटीजन सेड कीरा एंड लियान विजिटेड आवर कंट्री। तो कीरा भी जा रही है ब्रेलोसिया और ये भी जाएगा, लियान भी जाएगा ब्रेलोसिया, ठीक ना, ये जाएगा ब्रेलोसिया, ये जाएगा ब्रेलोसिया। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मान जाना है और एक कंट्री में 2 लोग जाने, तो इसके 2 कंप्लीट हो गए, इसके 2 चले गए। तो अब बचा है ये साइरेनिया में जाएगा और ये भी जाएगा साइरेनिया में। ठीक है। अब आगे, ब्रेलोसिया सिटीजन सेड कियारा स्पेंड 2000 एंड द लियान स्पेंड 3000। तो इसने स्पेंड किया है 2000 बी, इसकी करेंसी यूनिट बी ले लिया हमने। और अगर हम लियान की बात करें तो इसने विजिट किया था, इसने स्पेंड किया था 3000 बी अमाउंट, ठीक ना। एंड किराज ट्रेवल्स कॉस्ट वाज 4000। तो इसका 4000 यानी कि ये पूरी ये ब्रेलोसिया वाला पर्सन बोल रहा है, तो इसका जो अमाउंट है 4000 हो जाएगा बी करेंसीज में। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 8000 ए इज इक्वल टू 4000 बी एंड बी इज इक्वल टू 2 ए के। तो एक वैल्यू ये आ गई, और जो हमें पैसेज में वैल्यू दिया था कि z इज इक्वल टू 2c, अभी हमने निकाला था z इज इक्वल टू 2c। तो 2 डेटा हमें इजिली पता चल गया, z इज इक्वल टू 2c, ठीक ना, यहाँ पर ही हो गया। अच्छा, अब आप सोचो हमें यहाँ पे वैल्यू जो आनी है 1000 1 टाइम्स आनी है, 2000 3 टाइम्स आनी है, तो 3000 तो कंप्लीट हो गया है ना। मतलब यहाँ पे अब 3000 आएगा नहीं एंड 2000 आएगा नहीं, क्योंकि हर एक कंट्रीज में उनको अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कोई भी पर्सन जिस 2 कंट्री में विजिट किया उसका अमाउंट डिफरेंट होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3000 अब बचा नहीं है, 2000 रिपीट नहीं होगा तो आएगा 1000। और एरिया में विजिट किया तो इसका जो करेंसी यूनिट होगा वो ए में होगा, तो एक हमारा 1000 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें जे की, तो ये या तो 1000 ए में इन्वेस्ट किया होगा, तो 2000 सी इन्वेस्ट किया होगा, या 2000 ए किया होगा तो 1000 सी किया होगा, क्योंकि अमाउंट सेम हो नहीं सकते, यही बचा ही है। अच्छा, अगर हम करें तो यहाँ से एक 1000 और एक 2000 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, 1000 हो गया, एक बचा 2000, ये यहाँ पर आ जाएगा। और साइरेनिया में ए इन्वेस्ट किया तो इसका करेंसी उसी के लोकल में होगा, सेम है, तो ये इतना अमाउंट आ गया है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 5000 या 6000। एक पॉइंट और बचा है, साइरेनिया सिटीजन लियान विजिटेड आवर कंट्री, ये पता ही हो गया था, हम लोग वैसे ही निकाल लिया था। हर ट्रेवल कॉस्ट इज 36,000। तो ये सी में दे रखा है,
तो सी में दिया है तो इसको जेड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सी की जगह पे 1/2 जेड रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18,000 ए, ठीक ना। तो हम ए और सी का भी रिलेशन चाहे तो निकाल सकते हैं, ए और सी की वैल्यू का रिलेशन तो निकाल सकते हैं। 36,000 सी इज इक्वल टू 18,000 ए के, ए इज इक्वल टू 2 सी के वैल्यू आ गई, ये भी आ गया हमारा, ठीक है ना, ये आ गया। अब बस हमें देख लेते हैं यहाँ 5,000 आएगा 6,000 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5,000 रखता हूँ तो यहाँ पे 6,000 रखना पड़ेगा। तो ये जो 8,000 ए है, ये 8,000 ए की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए मनी स्पेंड प्लस फ्लाइट कॉस्ट। मनी स्पेंड की बात करें ए में रखेंगे तो 1,000 ए, अगर बी को चेंज करेंगे ए में तो ए 1 बी इज इक्वल टू 2 ए, तो यानी ये हो जाएगा 4,000 है ना। और इसको हम रहने देते हैं जेड में ही, देख लेते हैं क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लस यहाँ पे एक्स अमाउंट मान लेते हैं, चलो। तो ये आ गया कितना, ये आया 5,000 है, इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3,000 ए, 3,000 ए, एक्स की वैल्यू 3,000 ए आना चाहिए था, है ना। तो वैसे हमें पता अगर मैं यहाँ पे 5,000 जेड रखूंगा और ए को अगर मैं जेड में कन्वर्ट करूँ तो ए को जेड में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, ए को जेड में कन्वर्ट करने के लिए पहले ए को सी में करना पड़ेगा। ए को सी में करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 सी, और सी को जेड में कन्वर्ट करने के लिए सी की जगह पे रखेंगे 1/2 जेड, तो ये वैल्यू आ जाएगी तो कम आ रही है ना, 3,000 जेड आ रही, जबकि यहाँ पे है 5,000, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये आएगा, यहाँ पे आएगा 6,000, यहाँ पे आएगा 5,000, तो ये यहाँ पे आ गया अमाउंट 6,000 और यहाँ पे आ जाएगा 5,000, ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब जो भी पूछा जाए इजीली निकाल लो, ये क्वेश्चन में टाइम लग जाता तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया सारे डेटा। अब आते हैं हम यहाँ पे, वही सेम चीज मैंने यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ द ट्रेवल कॉस्ट ऑफ ऑल द ट्रेवलर इन जेंटास। तो सबको जेड में कन्वर्ट करना है, तो सबको जेड में कन्वर्ट करोगे तो 3500 ए है, इसको जेड में कन्वर्ट करोगे तो ए की जगह पे 2 जेड रखोगे तो ये हो जाएगा 7,000 जेड, है ना। इसको अगर करेंगे तो ए को जेड में कन्वर्ट करने के लिए 2 जेड कर दें तो ये हो जाएगा 16,000 जेड, और ये ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 1816, कितना आया 1816 हो गया आपका 34 7 41,000, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जेंटास डिड लियान स्पेंड इन द 2 कंट्रीज ही विजिटेड। हाउ मेनी जेंटास, लियान की हमें अमाउंट बतानी है 2 कंट्रीज का, किसके फॉर्म में बताना है, जेड के फॉर्म में। तो जेड के फॉर्म में बताना है तो बी को जेड में कन्वर्ट कर देते हैं और सी को भी कर सकते हैं, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं 18 में से 5,000 जेड माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 13,000। आगे, व्हाट वाज द जनरल टोटल एक्सपेंड इन द 2 कंट्रीज ही ए में इसका दोनों का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे जेड में है, ठीक ना, तो ए में बताना है तो हम क्या करें, इस वाले वैल्यू में या तो हम 35,000 ए में से 4,000 जेड को ए में कन्वर्ट करके माइनस कर दें, या फिर यहाँ पे माइनस करिए 7,000 जेड में से 4,000 जेड तो आया 3,000 जेड, और 3,000 जेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं ए में करोगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 जेड एंड जेड इज इक्वल टू 1/2 ए, तो ये हो गया 1500 ए, तो ये आ गया। आवर ब्रेन इज इक्विवेलेंट टू द हाउ मेनी क्रोन्स, 1b की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1b की वैल्यू कितने सी के बराबर होगी। तो b की वैल्यू हमें पता है 2a, सी में कन्वर्ट करना है, a को पहले z में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो गया 2 into 2z, है ना। अब हम क्या करेंगे 2 into 2z को कर लेते हैं c में, तो ये हो गया 2c के, ये वैल्यू हो गई 8 के बराबर। नेक्स्ट, which of the following statement is not true about the money spent in the local currency, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो सकता है लोकल करेंसी, बोला कि स्पेंड 1,000 इन ए, 1,000 इन ए, ये तो सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। जे 2,000 इन सी, जे 2,000 इन सी, तो जे 2,000 सी हो सकता है क्या,
ये 2000 अगर 6C होगा तो यहाँ पे होना चाहिए था 1000A, 1000A, तो ये हो सकता है ना, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। किसी को अगर देखना है तो ये इसको सॉल्व कर लो, है ना, कैसे करोगे, एक सेकंड इसको देखते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं, आप ये निकाल सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। तो क्या जे ने 2000 सी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, तो सी को अगर ए में कन्वर्ट करेंगे, तो सी को अगर मैं ए में कन्वर्ट कर दूं, या सी को जेड में कर देता हूँ, 2000 सी प्लस 4000 जेड की वैल्यू आनी चाहिए थी 7000 जेड। तो सी को अगर मैं जेड में कन्वर्ट कर दूंगा तो सी की जगह पे लिखूंगा 1/2, ये आया 4000 जेड, 7000 जेड, सी 2000 लोगे तो ये सी को जेड में करने के लिए रखोगे 1/2, 1/2, जे इज नॉट ट्रू मनी स्पेंट, ये पॉसिबिलिटी है ना। एक सेकेंड इसको ए में चेक कर लेते हैं, ये आया 3500 ए इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं ए में, तो इसको ए में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2000, हाँ ठीक तो है, इसको हमने माइनस कर दिया जेड को, 4000 जेड को हमने कन्वर्ट कर दिया ए में, तो ये हो गया 1/2 ए, यानी कि 2000 ए में आ जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 1500 ए, 1500 ए, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो 1500 ए में से यहाँ पे आ गया 1000 ए, यहाँ पे बचा 500 ए, तो 500 ए को हमें कन्वर्ट कर देना है सी में, ए को सी में करोगे तो हाँ आ गया 5000 का 4 टाइम्स है, तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब इसलिए ये आंसर नहीं होगा, है ना। लियान 2000 इन सी, लियान 2000 सी, ये तो कंफर्म दिख ही रहा है, ये हो जाएगा, इसलिए आंसर नहीं आएगा, तो बचा थर्ड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेट पे। ये अच्छा सेट था लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, देख लेते हैं क्या होगा। 3 कंट्रीज हैं PXC, ट्रेड अमंग देमसेल्फ एंड विद द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं और एक को हमने कैटेगराइज कर दिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो ये आपस में ट्रेड कर रही हैं। ट्रेड किस में कर रही हैं? इंटरनेशनल करेंसीज में। दो टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, ट्रेड बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड सेकेंड टर्म इज टोटल ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, है ना। एंड एक दिया है नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस, नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस की वैल्यू दे रखी है टोटल बैलेंस अपॉन द टोटल ट्रेड इन परसेंटेज इनटू 100% के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, और पॉइंट्स देने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा जाएगा कौन सा कंट्रीज किस कंट्रीज से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कितने अमाउंट का ट्रेड किया है इंटरनेशनल करेंसीज में। बस ये था, ये क्वेश्चन सबको कर लेना चाहिए था। मतलब इस स्लॉट 3 की अगर मैं बात करूं तो स्लॉट 3 में 4 सेट ऐसे थे जो आसान थे, आसान मतलब इजी टू मॉडरेट था, हम हाई लेवल नहीं बोल सकते इसमें। इसमें सिर्फ एक ही सेट था जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो हमने पता है ट्रेड जो होगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होगा, सबका सबके साथ करना है। तो जैसे हम लोग गेम्स एंड टूर्नामेंट में मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बना दिया, सबका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिख लिया, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और अरेंजमेंट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट मैं समझाता हूँ। पहले पॉइंट में बोला है नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस पी का 0%, पी का है 0%, एंड द नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस फॉर एक्स इज 10%, फॉर C is -20%, -20% इज इक्वल टू -1/5, 10% इज इक्वल टू 1/10। ठीक ना, अब इनको क्या करेंगे, हम इक्वल कर लेंगे किसके, नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस है तो नॉर्मलाइज ट्रेड बैलेंस क्या होगा, ट्रेड बैलेंस अपॉन टोटल ट्रेड, है ना। इसकी वैल्यू हो गई 0%, ट्रेड बैलेंस को आप लिखोगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये हो जाएगा एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट यानी कि टोटल जो एक्सपोर्ट होगा पी का वो टोटल इंपोर्ट के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10A, यहाँ पर भी लिख दिया 10A।
ठीक ना। सिमिलरली हम 10% और 20% को कर देंगे और हमारी वैल्यू हो गई, यहाँ पे रेशियो होगा 9:11 का। मैंने 90 और 110 लिख दिया ताकि परसेंटेज में वैल्यू हो, हमें कैलकुलेशन फ्रैक्शन में नहीं ले जाना, इसलिए हमने 0 बढ़ा दिया। सेम अगर हम इसकी बात करें सी की, तो सी की हो जाएगी 30 एंड 20, मतलब 3:2 होगा, मैंने उसको लिख दिया 30 एंड 20 में। सेकंड पॉइंट कह रहा 40% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ एक्स आर टू बी पी। कह रहा एक्स का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 40% एक्सपोर्ट हुआ है पी से, तो 40% लिखोगे तो 44 बी आ जाएगा, 110 का 40%, तो 100 यहाँ पे हो गया 44 बी। अच्छा ये एक्स का पी से एक्सपोर्ट है तो पी का एक्स से ये इंपोर्ट भी बन जाएगा, क्योंकि एक के लिए अगर एक कंट्री का दूसरे के साथ एक्सपोर्ट है तो वो दूसरा वाला पहले के लिए इंपोर्ट बन गया ना। तो हम ये जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे गेम्स टूर्नामेंट में, उसी तरीके से पूरे डेटा को फिल कर ले रहे हैं। 22% ऑफ इंपोर्ट ऑफ पी आर फ्रॉम एक्स। कह रहा कि पी का जो टोटल इंपोर्ट है उसका 22%, तो हो जाएगा 10 हमने ए लिया है तो ये हो गया 2.2 ए, तो ये 44 बी इज इक्वल टू 2.2 ए के हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू 20 बी के, ठीक ना। 20 बी यहाँ से करोगे तो पॉइंट हो गया, यहाँ पे आ गया 20 बी के, तो यहाँ से हो गया है ना। तो हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा और यहाँ पे हमने डेटा को लिख लिया, ठीक है। आगे तो ए इज इक्वल टू 20 बी आ गया। नेक्स्ट में आता है थर्ड पॉइंट, कह रहा कि 90% एक्सपोर्ट ऑफ सी आर टू बी पी। तो सी का टोटल एक्सपोर्ट 20 सी था, 20 सी का 90% हो जाएगा आपका 20 सी है ना, 20 सी का 90% हो गया 18 सी। तो 18 सी जो है एक्सपोर्ट वो पी से हुआ है यहाँ पर, तो सी का पी के साथ एक्सपोर्ट है तो पी का सी के साथ ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेम बोला है 4% रेस्ट ऑफ वर्ड का है, तो 20 का हो गया 0.8 सी यहाँ पर आ जाएगा। ये है सी का एक्सपोर्ट है रेस्ट ऑफ वर्ड का, तो रेस्ट ऑफ वर्ड का एक्सपोर्ट हो जाएगा सी से, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0.8 सी, ठीक है। तो अब बचा क्या, एक्सपोर्ट ये होगा, सी खुद से एक्सपोर्ट करेगा नहीं, इसका ये हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, ऐसा क्या वैल्यू ऐड कर दे कि 20 सी आ जाए, तो 2.12 1.2 सी, तो यहाँ पर आ गया ये वैल्यू, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक ना। दोनों रो कॉलम में वैल्यू फिल कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे 12% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आर टू एक्स, ठीक है। तो एक्स का टोटल एक्सपोर्ट कितना है, टोटल एक्सपोर्ट है एक्स का है 110 बी, तो 110 बी का 12% इसका हो जाएगा 12% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू एक्स। तो रेस्ट ऑफ वर्ड्स का यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्स के साथ, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 12%। तो 12% क्या लिया जाए, मैं यहाँ पे 100 एन एज्यूम कर ले रहा हूँ। रेस्ट ऑफ वर्ड का टोटल एक्सपोर्ट हमने 100 एन ले लिया, तो इसका जो एक्स से एक्सपोर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 12 एन, ठीक है। और 40% फ्रॉम पी, तो ये हो जाएगा 40 एन। तो इसी को हमने दोनों ऑर्डर में लिख लिया, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है, रो कॉलम में। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट हो गया फिफ्थ पे। फिफ्थ में बोला है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ पी इन इंटरनेशनल करेंसी टू एक्स इज, पी का इंटरनेशनल करेंसी एक्स का एक्सपोर्ट है 600 और सी के साथ है 1200, तो ये हो गया, ठीक है। और पी का सिर्फ इसी के साथ एक्सपोर्ट है, पी इज द ओनली कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट टू सी, ठीक है। तो पी ने एक्सपोर्ट सिर्फ सी से करा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो वैल्यू हमने कॉलम में लिखी है उन्हीं वैल्यू को हमने रो में फिल कर लिया, तो ये हो गया ये वैल्यू है ना। अब हम आते हैं पहले पे, तो हमने क्या करा, सी का डेटा यूज किया, इसका इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट इज इक्वल टू इसके, तो यहाँ से हमने निकाल दिया 1200 इज इक्वल टू 30 सी और सी इज इक्वल टू 40 के, तो 40 की वैल्यू हमें मिल गई सी की वैल्यू, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमने निकाल दी 40, ठीक है। अब आते हैं हम लोग और भी पॉइंट्स निकालने हैं, और पॉइंट्स कैसे निकालें, अब हम देखेंगे। अगर हम P का यूज करें तो P का यूज करेंगे तो ये 44B और इंपोर्ट 18C, इसका इंपोर्ट, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं A को पहले B में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो A इज इक्वल टू 20B था, तो ये हो जाएगा 200B और ये भी हो जाएगा 200B। हम क्या कर रहे हैं, अब इस A, B और N में से किसी एक की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा,
बी और एन में से अगर किसी एक की वैल्यू निकालनी है, अच्छा सी की वैल्यू पहले हम इसमें रख के सबको चेंज कर देते हैं वैल्यू में, है ना। तो 18 इंटू 40, 1.2 इंटू 40, 1.8 इंटू 40, ऐसा करके हमने इनको चेंज कर दिया नंबर्स में, ये हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, पी का डेटा अगर यूज करें तो पी के डेटा में हमने एक्स का इंपोर्ट और इसका सी का इंपोर्ट और रेस्ट ऑफ वर्ड के इंपोर्ट के इसके बराबर कर दिया यहाँ पे, ठीक ना। और x से हमने इसका कर दिया 600, इसका इंपोर्ट और इसके इंपोर्ट को हमने 90b के बराबर कर दिया। अब दोनों v की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमें n की वैल्यू मिल गई 21 और b की वैल्यू मिल गई है 10, ठीक है। अब जहां जहां b है वहां वहां 10 कर दिया, जहां जहां n है वहां वहां 21, और हमारा टेबल कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर इसका इंपोर्ट निकालना है तो इसका इंपोर्ट कैसे मिलेगा, 1008 यहाँ पे इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट ये है, इसका इंपोर्ट नहीं पता है ना, इसका इंपोर्ट नहीं पता है तो क्या करें पहले तो इन सारे डेटा को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका इंपोर्ट आया 440, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सबको ऐड करेंगे हम, 2000 से माइनस कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सेम इधर अगर मैं इसका इंपोर्ट ऐड करूं, इसका इंपोर्ट ऐड करूं, इसका इंपोर्ट ऐड करूंगा, 900 से माइनस करूंगा, नहीं मुझे एक्सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए, एक सेकंड, इधर से नहीं आएगा, ये तो हम इंपोर्ट निकाल दे रहे हैं ना, एक्सपोर्ट चाहिए हमें पी का रेस्ट ऑफ वर्ड से, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1200 है, इसका मिसिंग है, 1800 माइनस कर देंगे तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा। इसके एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, 440 ऐड किया और यहाँ पर 0 है, 252 एक्सपोर्ट, दो ही है ना इसमें, तो इसको 900 में से ये नहीं यूज करेंगे, ये तो इंपोर्ट है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे ये है, और इसको 900 में से इनको 440 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और हमने यहाँ पे माइनस करके रख दिया है 660, तो ये वैल्यू पूरी मिल गई। अब इनको हम इंपोर्ट्स को सबको ऐड कर देंगे, ये सारी इंपोर्ट्स वैल्यू को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 900। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम सी टू एक्स, सी टू एक्स एक्सपोर्ट सी का x से, तो ये आ गया 48। नेक्स्ट, हाउ मच एक्सपोर्टेड फ्रॉम p टू रेस्ट ऑफ वर्ड, p टू रेस्ट ऑफ वर्ड का एक्सपोर्ट आ गया 200। हाउ मच इज द एक्सपोर्टेड रेस्ट ऑफ वर्ड टू रेस्ट ऑफ वर्ड, तो ये एक्सपोर्टेड इसका रेस्ट ऑफ वर्ड टू रेस्ट ऑफ वर्ड का आ गया 1008। व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ड, ट्रेड बैलेंस क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इनको 2100 माइनस 19 आ गया 200। Which among the countries P, X and C has and have least total trade, total least trade, total trade क्या होता था, इन दोनों का सम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये 4000 आया, ये 2000 आया, अभी तक तो यही लिस्ट है, ये भी 2000 आया, ये भी लिस्ट है, ये ज्यादा हो गया तो आ गया X and C, तो ये भी आसान था, कर लेना चाहिए था। आते हैं इस पे, लास्ट सेट है हमारा, बोला है अनु, विजय, चेतन, दीपक, एहसान एंड फारूक are 6 friends, each of them they uses a mobile number from the exactly one of the two mobile operator X and Y. During the last month, the 6 friends made the several calls to each other. Each calls was made by the one of these 6 friends to another. The table below summarizes the number of the minute of the calls that each of the 6 made to outgoing minutes and the received from the incoming minutes these friends. Grouped by the operator, some of the entries are missing. तो हमें यहाँ पे बोल रखा है 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स में से ये दो A एंड B दो सिर्फ X ऑपरेट मोबाइल ऑपरेटर हैं, एंड बाकी रेस्ट C, D, E एंड F Y ऑपरेटर के हैं। C, A to F कितने लोगों ने कितने आउटगोइंग कॉल्स किए हैं, कितने इनकमिंग कॉल्स हैं, किस आउटगोइंग कॉल्स में से कितने को X को ऑपरेट किया रहा है, ऑपरेटर X को आउटगोइंग करा है, कितने ऑपरेटर Y को आउटगोइंग करा है,
कितने ऑपरेटर एक्स से इनकमिंग हुआ है, सबका हमें डिटेल टेबल में दे रखा था। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था इसमें, ठीक ना। तो स्लॉट 3 तो बहुत ही आसान था, स्लॉट 1 ही सिर्फ था, वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एक ही क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो सारे ही डुएबल थे, ठीक ना। तो पहले तो आप लोग DILR तभी कर पाओगे जब आपको पैसे समझ आ रहा हो। डेटा अपने को पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट को अगर आपने इंटरप्रेट कर लिया, ग्राफ को समझ लिया तो क्वेश्चन आसान, नहीं तो टफ, ठीक ना। तो बच्चे यही है, अगर ज्यादा वेरिएबल आप समझ नहीं पाते, क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाता, समझ जाओगे तो हो जाता है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। आते हैं यहाँ पे आउटगोइंग मिनट्स, ए ने कितने बनाए होंगे, ए और बी ने। तो हम देखते हैं ए और बी ने एक्स ऑपरेटर को जो कॉल किया होगा, है ना, कॉल किया होगा, तो हमें जब पता है ए और बी दो ही एक्स ऑपरेटर हैं, तो ए अगर एक्स ऑपरेटर को कॉल करेगा तो बी के पास जाएगा, और बी जो कॉल करेगा वो ए के पास आएगा। तो अगर ए का हम आउटगोइंग कॉल की बात करें ऑपरेटर एक्स का, तो ये जो 100 है वो ए का एक्स का आउटगोइंग है, और यही 100 बी का फ्रॉम एक्स इनकमिंग हो जाएगा, है ना। जब दो ही ऑपरेटर हैं एक्स वाला, एक्स वाले अगर दो ही ऑपरेटर हैं, ए कर दो, ए और बी, ए करेगा तो बी के पास जाएगा और बी करेगा तो ए के पास जाएगा। बहुत आसान था ये। अच्छा, अगर मैं ए का इनकमिंग ऑपरेटर फ्रॉम ऑपरेटर एक्स से बात करूं तो वो 50 है, तो ये जो इनकमिंग 50 है वो बी का आउटगोइंग होगा, तो 50 यहां पर आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू से इक्वल हो जाएगी, खत्म, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ए और बी ऑपरेटर एक्स वाले आउटगोइंग कॉल्स की वैल्यू है ये, ठीक ना, ये वैल्यू। तो ए एंड बी ऑपरेटर मोबाइल एक्स के हैं, तो ये जो आउटगोइंग कॉल्स कर रहे हैं ऑपरेटर वाई वाले को, वाई वाले कौन होंगे, तो वो सारे वाई वाले मेंबर्स जो इनकमिंग कॉल्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम एक्स ऑपरेटर, तो वो वैल्यू कौन सी है, ये है। तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो 200 इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 400 400 525, तो ये वैल्यू पूरी 525 होगी। ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, तो ये वैल्यू हो गई इसके बराबर पूरी, ये वैल्यू हो गई इस पूरे के बराबर, ठीक ना। लेकिन कौन सा ऑपरेटर किसको कॉल किया अभी ये हम नहीं जानते, अभी इसको हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो आप सोचो ये जो पर्सन है, ये वाई वाले मेंबर्स, ये वाई वाले मेंबर्स ऑपरेटर एक्स को आउटगोइंग कॉल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये एक्स ऑपरेटर का इनकमिंग होगा जो वाई से आ रहा होगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो ये वैल्यू अगर इक्वल होंगी तो ये 225, ये 125, ये हो गया 350, तो ये 150, तो यहाँ पे आ गया 200, तो ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये वैल्यू बराबर हो गई इसके, तो मैंने सबको सेम कलर में रख दिया है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे इन दोनों के, ठीक है। चल, तो व्हाइट का ये जो आउटगोइंग है इसके इनकमिंग के बराबर हो गया, ये ब्लू वाले का जो आउटगोइंग है इसके बराबर हो गया, इस वाले का इसका, तो बचा हुआ आपस में बराबर हो गया। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 से गया, 150 से गया, यहाँ से 170 200 और 150 यहाँ आ गया 350, तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक ना। अब हम कोई भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ये हमें वैल्यू दिया था, ये बोला गया था कौन सा पर्सन किसको कॉल किया है कितने मिनट के लिए, और कौन किसको कॉल नहीं कर रहा है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आ सकता है। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। कह रहा है कि एफ ने ई को टोटल 200 मिनट के लिए कॉल किया है, लेकिन देयर वर नो कॉल्स फ्रॉम बी टू ई का कोई कॉल नहीं था, सी का ए का नहीं था, सी टू डी नहीं था, डी टू बी नहीं था, डी टू एफ नहीं था, ई टू सी नहीं था, ई टू डी नहीं था। तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। हमने कहा यहाँ पे बी ने ई को कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे बी ने ई को कॉल नहीं किया, क्रॉस कर दिया। सी ने ए को कॉल नहीं किया, क्रॉस कर दिया। सी ने डी को कॉल नहीं किया, ये भी क्रॉस कर दिया। तो ये हमने सारी वैल्यू बना ली है मैट्रिक्स, ठीक ना। और यहाँ पे एफ ने ई को कॉल किया 200 मिनट के लिए, ये डेटा हमने यहाँ पे नोट कर लिया। आते हैं हम लोग यहाँ पर आगे क्वेश्चन में। पहला, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स
बी टू ए, तो बी ने ए को कौन सा कॉल किया होगा, तो बी एक्स ऑपरेटर है और वो एक्स ऑपरेटर वाले कॉल को ही बात कर रहा है ए को, तो वो कितना करा होगा 50, ये आ गया। व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल मेड बाय द ए टू फ्रेंड हैविंग द मोबाइल नंबर ऑपरेटर वाई, ए ने वाई वालों को टोटल कितने मिनट के लिए कॉल किया 525। व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉल इन मिनट मेड बाय द फारूक टू द फ्रेंड हैविंग द नंबर ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम वाई, तो फारूक ने वाई ऑपरेटर वाले को कितने कॉल किए, फारूक ने एक्स वाले को 0 और वाई वाले को 350 किया, ये हो गया। ठीक ना, ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, तुरंत आ जाता। ठीक ना, एक यहाँ पे बचा लास्ट। फोर्थ क्वेश्चन बोला व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम डी टू सी, तो डी टू सी मतलब डी भी ऑपरेटर वाई है और सी भी ऑपरेटर वाई है, तो डी ने सी को कितने कॉल्स किए हैं कितने मिनट के लिए, ये हमें बताना है। आप सोचो डी ने सी को कौन से करे होंगे, तो ऑपरेटर वाई ने ऑपरेटर वाई को कौन सा कॉल किया है, तो ये वाला है, ये देखो ये ऑपरेटर वाई है, सी डी ई एफ, इन्होंने जो वाई ऑपरेटर को कॉल किया है ये, और जो इन्होंने रिसीव किया है ये है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब इन्होंने कॉल सिर्फ इन्हीं को किया होगा, तो हमें सिर्फ मतलब है सी डी ई एफ का, तो हमने यहाँ पे सी डी ई एफ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक ना, सी डी ई एफ, तो ये हो गया। ठीक ना, अच्छा एफ ने, अगर मैंने कहूं ई ने टोटल वाई ऑपरेटर को कितने कॉल्स किए हैं, अच्छा सी डी ई एफ लेना है, इसको थोड़ा और एक पढ़ा करते हैं, ये भी लेना पड़ेगा, ये हटाता हूं, सी से लेना पड़ेगा ये पूरी वैल्यू। ठीक ना, सिर्फ हमें ऑपरेटर वाई का है। अब पहले तो ये जो मैं मैट्रिक्स बनाया ये समझ लो, ये इसका मतलब हुआ ई ने सी को कोई कॉल नहीं करा है, ई ने डी को कोई कॉल नहीं किया है, ई ने ई को कोई कॉल नहीं कर सकता, खुद को थोड़ी ना कॉल करेगा, एफ ने ई को 200 मिनट के लिए किया है, तो जो रो वाली वैल्यू है ये आउटगोइंग कॉल है और जो कॉलम वाली वैल्यू ये सबकी इनकमिंग कॉल है। तो ई ने टोटल आउटगोइंग वाई ऑपरेटर को कितना किया है, तो आप कहोगे 100, तो 100 यहीं पर आएगा। ठीक ना, अच्छा अगर मैं अब इस वाले बॉक्स की बात करूं एफ का, तो एफ ने टोटल इनकमिंग कॉल्स कितने करे हैं वाई ऑपरेटर को, एफ ने इनकमिंग फ्रॉम वाई ऑपरेटर कितना है 150, जिसमें से 100 ये है, तो यहाँ पे बचा 50। ठीक ना, सी ने टोटल आउटगोइंग कॉल्स कितना करा है वाई ऑपरेटर को, तो 175, 175 में से 50 यहाँ आ गया तो 125। ठीक ना, ई ने टोटल वाई से कितना रिसीव किया है, तो ये ई ने टोटल रिसीव कितना किया है, तो 375, 375 में से जिसमें से 325 आ गया, यहाँ पे बचा 50। अच्छा डी ने टोटल कितने वाई ऑपरेटर से रिसीव किया है, यानी कि 100 किया, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे डी का करना था ना, तो 150 है, तो यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, देख लो डी ने टोटल रिसीव कितना है 150 ना, जिसमें से ई का है 50, बाकी बचा 100 यहाँ पर, तो ये हो गया आंसर। ठीक ना, तो 100 आंसर आ गया आपका ये, तो बहुत आसान था। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबको शेयर करो फ्रेंड्स को। अभी कहीं पर भी स्लॉट 3 का सोल्यूशन नहीं आया है, तो मैंने इसीलिए इसको होल्ड करा था ताकि आप लोग स्लॉट 2 पहले देख लो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा होल्ड कर दिया था। आप जो भी आपके फ्रेंड्स स्लॉट 3 का पेपर दिए थे उनको अपना आंसर चेक करना है, सोल्यूशन चाहिए तो उनको शेयर करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।